हेलो फ्रेंड, मैं निशित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। एक दफा फिर हम आपके साथ जुड़े हैं हमारे एक्सप्रेस एंट्री सक्सेसफुल पीआर इमिग्रेंट को लेके। हमारे साथ है मितवा ठक्कर और मौलिन ठक्कर। ये दोनों अपने बेस पे, यानी उन्होंने इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स अपने यहाँ दिया, फिर अपने एजुकेशंस और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कोई भी एलएमआई या फिर स्पॉन्सर या फिर जिसको कहा जाता है कोई भी जुगाड़ किए बिना कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री में पीआर उन्होंने रिसीव किया है थ्रू द हेल्प ऑफ केयर इमिग्रेशन। कैसे? अगर आप भी कनाडा पीआर के लिए जाना चाहते हो तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी हमारे सक्सेसफुल क्लाइंट के साथ। तो दोस्तों, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ है मितवा अरविंद भाई ठक्कर। मितवा, आप अपना परिचय दीजिए। Okay. Hello everyone. I am Mitwa Thakkar. I am basically from Nadyar and my education is from Charusat University. I have completed my bachelor's and master's from Charusat University. I have been associated with Charusat as a faculty as well. So I have been working as an assistant professor in the same university since last 5 years. Since last 3 years, we were thinking that we would like to shift to Canada. Okay. For 1 year, we did the process on our own, but I guess we thought that it would be better to have one of the immigration agent with us. That is why we approached CARE, and the process went on. So, Mitwa, what about your English course you have been getting here? I preferred to take the CELPIP score over any other test. And I guess that is the one that I was quite more comfortable with, and I could easily score CLB 10 with the CELPIP. So that is one of the good achievements that we had. Though we need to take 2 to 3 takes, I worked very hard, but I guess at the end we learned that it is possible to get CLB 10, and everything can be done without any of the other resources or using any of the LMIAs or any of the other processes. Yes. Nowadays, the PR persons who are planning to going in Canada through the PR, they have someone suggested, or the relative suggested, or some in case the agent suggested, do the LMI and you will be get that sure. And LMI, you know that actually LMI should be a no cost, but there are collecting a huge cost for the issuing the LMI in favor of the particular applicant. तो आपके केस में कोई ऐसा LMI या ऐसा कोई स्पॉन्सर वगैरह की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी? No. Initially when we came, I guess Nishit sir and Sunny bhai guided us that if we can score well in our language test, based on our education, that can be done without help of any of the LMI or anything. Exactly. And so that is where we focus. We prefer to focus on language test rather than using any of the method of. Okay, can you give me the detail of your CELPIP in subscore as well? Yes, I have that. In the listening, I had 11, in writing 12, in reading 12, and in speaking 9. So I guess yes. So overall 10, right? Overall 10, I was able. और आपके साथ आपके हस्बैंड भी है यहाँ पर, मौलिन? Yes. मौलिन जी ने भी CELPIP दिया था? Yes, I have given CELPIP in April 2021. Okay. And I have scored in a single time. I have scored CLP 7 in 3 days preparation only. Yes, 3 days में 7 CELPIP ला दिए थे आपने। Yes. और it is enough. It is enough. है ना, यही होता है। अगर आप अपने पॉइंट काउंट कीजिएगा और उसमें अगर आप सुटेबल हो रहे हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बहुत ही कम एक्सपेंस में भी आपका काम हो सकता है कनाडा जाने का, पीआर का ड्रीम सक्सेस ऑफ पेशेंस एंड परसिवरेंस। यस, मौलिन, you have to achieve this goal by your own, not without anyone's extra monies. Yes, extra money. है ना? और उन्होंने EOI सबमिट किया था 6 जून 2022। ठीक है। फिर आपके बाद उसका ITA आया तकरीबन 2 फरवरी 2023 और पासपोर्ट में स्टैम्प होके आया अप्रैल 2023। ये उनकी जर्नी है। अगर मैं मितवा जी आपको पूछूं कि केयर इमिग्रेशन को अगर आपने अपना पीआर के
कंसल्टेंट के तौर पे चुना। बहुत से ऑप्शन थे, बहुत से और भी कंसल्टेंट कर रहे हैं आजकल, तो बहुत से सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टीचर, वैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, हम स्टूडेंट हो आपके एंटायर प्रोसेस में, फॉर्म्स चेक करवाना से लेके पूरी प्रोसेस आपको बतानी, उसके बाद सबमिट करने से लेके जब अप्रूवल का स्टैंप आया तब तक, आपको केयर इमिग्रेशन का सर्विस 10 में से कितना लगा? I would say 9 out of 10. ये बहुत अच्छी रैंक है, क्योंकि अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर खुद अगर आपको 9 दे रहा है तो यू आर एक्सेलेंट, Correct. है ना? Just one has been cut that because there is a room. There must be any scope for improvement. So as a teacher, I would cut -1, or else it can be 10 out of 10. यस, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर कोई प्रोफेसर आपको 9 दे रहा है, मैंने पहले ही बोला, उन्होंने एक क्यों काटा उसका भी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी तरह दे दिया। मौलिन जी से भी पूछते हैं कि वो कितना देंगे एज अ स्पाउस एप्लीकेशन। देखिए इनका एक जो मुझे मतलब जो अच्छा लगा वो है, एक तो एकदम फ्रेंडली, मतलब जो है सब पूरा स्टाफ आपको गाइड करता है। ऐसे नहीं है, मनी माइंडेड पीपल नहीं है जैसे ऐसे लोग मार्केट ऑपरेट करते हैं। दे वुड लाइक गाइड यू इन प्रॉपर वे, इन प्रॉपर डायरेक्शन, सो आपको कहीं आगे जाके कहीं पे भी रुकना ना पड़े, कहीं तकलीफ जो है वो आपको फेस ना करनी पड़े। एंड वी वुड लाइक to mention also that we have put up our file in March 2022. At that time our CRAs were 429. Yes. But when we received our IT in 2nd February, at that time cutoff date was of March 29, 2022. Okay. So उस टाइम पे एलिजिबल नहीं थे, लेकिन पूल में थे, तो मतलब क्या है कि हमारा उस टाइम पे वो ड्रॉ में हमारा नंबर लग गया। So जो भी PR एस्पिरेंट्स है, जो भी मतलब ये वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, I would like to say that आपको पूल में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। Exactly, because this is like this process is like nobody knows whenever the rule changes. Yes. और कब कितने लेंगे वो लोग, कितना ड्रॉ करेंगे, कितने स्कोर पे जाएगा, ये चीज सिर्फ उनको ही मालूम होती है। There are many pathways also. Yes. They are opening many pathways to invite immigrants. Yes. From many other fields and various. There are other options also apart from this normal express entry. So that it is very important to be in the pool, and it is very important to be patient. Having said that, पेशेंट बहुत जरूरी है। पेशेंट बहुत जरूरी है। तो आप पैसा नहीं अपना वेस्ट करेंगे कहीं, और राइट डायरेक्शन में जाएंगे, और आपके खुद के बेस पे बहुत ही नॉमिनल चार्ज में PR भी पॉसिबल है दोस्तों। ये उनके हमारा लाइव एग्जांपल था आपके सामने। हमारा पर्पस यही था कि उनसे डायरेक्ट बात करवाए, आपकी उनकी बात आपके साथ सुनवाए, कि आपको भी मालूम पड़े कि ऐसा पॉसिबल है। इतने स्कोर पे कुछ भी किए बिना भी आपका ये 2023 में वीजा आ सकता है। चलिए अभी उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं, मौलिन जी को और मितवा को। ये उनका लेटर और कंफर्मेशन है। मौलिन जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये उनका इमिग्रेशन का थप्पा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मितवा जी को भी दिखा दे उनका। लेकिन ये अच्छा रहा, मौलिन जी ने हमको 10 out of 10 दिए, क्योंकि वो प्रोफेसर नहीं हो है ना? हाँ मितवा जी, Thank you. वेलकम। और वैसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अगर 10 में से 10 देते तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. ऑलवेज वेलकम। इसी तरह दोस्तों, आप कनाडा PR के लिए इंटरेस्टेड हो, वहाँ पे जाइए, पढ़िए, बहुत अच्छी अपनी लाइफ वहाँ पर एंजॉय कीजिए अपने लव वंस के साथ। और ऐसे वीडियो, ऐसी जर्नी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और फॉरवर्ड जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।